So if we see present the estimate of reign of Muhammad bin Tughlaq while highlighting the views of Barani. So if we see this specific subject, so estimate लेके आना है हमें इनका estimate जब भी हम बात करते हैं तो it will always better we focus on the personal qualities of the Sultan versus what were his policies. So personal और professional दोनों उसके बारे में बात करते हैं while highlighting the views of Barni. So specifically what was the views of Barni with respect to Muhammad bin Tughlaq. That is what we have to see in this question. So if we see the introduction is relatively straightforward. Muhammad bin Tughlaq was an intriguing personality who tried to bring reforms but failed. थोड़ा सा abrupt introduction लगा मुझे. Initial part ठीक था, was an intriguing personality. फिर बेसिक से वो बेसिक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, who has been assessed differently by different scholars, उस तरीके से भी कर सकते हो. ज़ियाउद बारनी, so sources mentioned तारीख फिरोज शाही is a primary source of the reign of Muhammad bin Tughlaq. Yes, that is there. तो जितना भी रेन है उसको बारनी उसका प्राइमरी सोर्स है. Along with that, if you wish to write, you can even mention about Ibn Battuta and his specific book Kitabul Rihla. That could also be mentioned here as a source, even though here the direct importance is being given to Barani. Introduction में थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो इसको, इसकी रेन के बारे में बता सकते हैं that he was an intriguing personality, launched various reforms in order to satisfy various dimension of the Sultanate. However, the results were not always in sync with his expectations. So that can be an introduction, or we can just write that he was an intriguing personality who was liberal on the one hand, but at the same time could see in the extremes of anger as mentioned by Ibn Battuta. So वहाँ पर भी सोर्स मेंशन कर सकते हो, एक सोर्स को एक्सप्लेन कर दो, एक को इंट्रोडक्शन में वैसे यूटिलाइज कर लो. चलिए अब आगे चलते हैं. So if we see his reign, so here the approach could have been a lot better in this question. We have brought this question in front of you so that आप समझ सकते हो. Student has divided into with keywords like reign of Muhammad bin Tughlaq through Barni. What information we get? Various parts में divide किया उन्होंने, सारे reforms को actually evaluate किया है एक तरीके से, ठीक है. And successfully provided Barni's statement with enable student to fulfill the core demand and divide key into key subparts. तो अप्रोच तो इस तरीके की रखी गई. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, सो अकॉर्डिंग टू बारनी, सुल्तान शिफ्टेड कैपिटल ड्यू टू इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वेरियस एरियाज लाइक लखनौती, मदुराई, गुजरात एक्सेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है. Entire Delhi and areas were desolated after transfer. This seems to be an exaggeration, as Ibn Battuta, who came to Delhi after transfer, described as a hustling place. And Delhi was also described as being minting took place. So coins मिले हमें वहाँ से. So क्या हुआ है ना कि when Barni started writing about Muhammad bin Tughlaq, by that time he was already in jail. Firoz Shah Tughlaq, he came to power in 1351, and Barni, he was in jail for 6 years. Last few years he was writing this book, and during that time he was trying to appease Firoz Shah so that he can get some kind of patronage. So that's why many of these things which he has written, they are written under duress, है ना. उसको एक तरीके से बोलो कि हताश होकर लिखा है उन लोगों ने. So Bani writes, many died on the way due to this summer heat, etc. But if you see, the contradictory views come from Sir Hindi, who mentions Sultan constructed sarais and kosh from Delhi onwards. So बहुत conflicting तरीके से बताता. But anyway, if you see this transfer did not come out to be, I would say, productive for the whole Sultanate. And this experience, there was a lot of wastage of resources because of the, I would say, kind of plague which spread in that area. He had to come back to Delhi. Currency, if we see, thoughts was not put, how to ensure forgery is not done. Paper, the token currency experiment was done by him. This was successful in China, did not work out because जो उसका design that could be easily copied. So that was there. Then we also have other experiments. तो experiments चलो एक तरफ अलग है, बट फोकस रहता है अगर पर्सनल और प्रोफेशनल में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि एस्टिमेट जब भी किसी के पर्सनालिटी का करेंगे वो सिर्फ एक पार्ट का कभी हो ही नहीं सकता. बोथ आर द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनल ट्रेड्स, सो टॉक अबाउट ही वाज वन ऑफ द मोस्ट लिबरल, ही वाज समबडी हु वाज हैविंग टॉलरेंस, यूज्ड टू प्ले होली इन हिज कोर्ट, वेरी लर्नड पर्सन एज ही वाज having the understanding of mathematics, calligraphy, all those subjects he was probably having good knowledge of them. तो वो पर्सनल में आ जाता. प्रोफेशनल में आता कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. ही वॉज अ इनोवेटिव पर्सन और उसके अंदर उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए, बट ही वॉज नॉट एबल टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ देम वर्क, एंड इवेंचुअली सम ऑफ देम failed because of one or the other reason that you can explain specifically. Then in the professional conduct you can also mention about the bureaucracy, the जो उम्मीद लगाई थी उन लोगों ने, the expectation with which he eventually
created a very heterogeneous kind of bureaucracy. It didn't work out, became one of the major reasons for the disintegration of the whole of the Sultanate. Eventually, whatever limitations of his reign, they were responsible for the policy of appeasement which was pursued by Firoz Shah Tughlaq, that is his cousin brother later on. So वो सब प्रोफेशनल में आना चाहिए था, इसी को हम यहाँ पे और अच्छा कर सकते हैं. एक दो हिस्टोरियंस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लाइक द स्टूडेंट हैज मेंशन अबाउट थॉमस एडवर्ड एग्जामिन्स द कॉज of this Stormers and concludes royal official and common implements and on the metal for coins. तो coins के ऊपर देखते हैं कि भाई specifically what were the specific factors which were responsible for that. Alright, so historians को यूटिलाइज कर सकते हो. इस वाले क्वेश्चन में अगर सिर्फ सोर्सेज भी अच्छे से करोगे तो चल जाएगा, ऐसे हिस्टोरियंस का यूटिलाइजेशन जरूरत नहीं. कराशियल एक्सपेडिशन के बारे में बात कर सकते हो, रेवेन्यू टैक्सेशन एंड रिफॉर्म्स. वी एस स्मिथ आफ्टर एनालाइजिंग दिस रिमार्क्ड मोहम्मद तुगलक एज अ ट्रांसेंडेंटल फेलियर. तो ये जो यहाँ पे कंक्लूजन किया हुआ है ना, ये थोड़ा सा ना एक्सट्रीम तरफ चला गया है, ये चलेगा नहीं. ऐसा होता है व्हेन यू नो टू मच ऑफ हिस्टोरियोग्राफी यू एंड अप राइटिंग लाइक दिस. दिस इज़ द प्रॉब्लम. मेनी स्टूडेंट्स से सर मैंने हिस्टोरियोग्राफी कम आती है, तो बेटा कम आती है तो उससे मार्क्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि 270 से 320 जाना है, 325 जाना है, तो हिस्टोरियोग्राफी पर अच्छी पकड़ चाहिए. बट 270 मार्क्स तो बेयर मिनिमम हिस्टोरियोग्राफी प्लस गुड स्ट्रक्चरिंग से आ जाते हैं. तो ऐसा नहीं लिखना, बिकॉज डायरेक्टली किसी एक हिस्टोरियन का ओपिनियन वहाँ पे चलेगा नहीं. ये ऊपर लिख सकते थे एस्टिमेट में, कंक्लूजन में नहीं. सो कंक्लूजन में देखें तो इवेंचुअली इफ वी सी हिज रेन, सो इट्स अ मिक्स बैग. इट्स नॉट समथिंग विच इज़ आई वुड से very progressive, but at the same time if we see as from the empire point of view, he was having the largest empires in control. But it was during his time we see the rise of Madurai Sultanate, Vijayanagar Empire as well as the Bahmani Sultanate. तो उन सब का एम्पायर, सो ब्रेक डाउन भी वहीं से स्टार्ट हो जाता है. तो कंक्लूजन में थोड़ा सा उन चीज़ों पे बात कर सकते हो. But we see the beginning of the largest empire during Sultanate, but as well as the beginning of the disintegration. And this explains the overall personality of Muhammad bin Tughlaq, where we see one good and one bad. So the extremes were always represented in his personality along with the events of his reign. Hi, so welcome to Prep Career. Today I am going to discuss about a program which can help you in improving your answer writing skills. Answer writing skills, as all of us know, are very paramount for getting maximum marks in optional. And optional में अगर marks लेके आने हैं तो अभी आपको ये सब चीज़ start करनी पड़ेंगी. So if you are preparing for 2025, हो सकता है कुछ cases में आपका prelims इस साल ना निकला हो, right, in 24. So you have to take the long road. बहुत लंबा road है. आप हम आराम से 3-4 महीने optional को अच्छे से अभी dedicate कर सकते हैं, right? So during this time, when you have a lot of time, उसको अच्छे से utilize किस तरीके से करें. दिस इज वेयर डॉन कम्स इन. डॉन का जो मेजर फोकस है वो किस चीज़ पे रहता है कि आप लोग आंसर राइटिंग सीखिए. बिकॉज खुद से जब हम आंसर राइटिंग करने जाते हैं वो रेगुलर नहीं रह पाते. कभी सोचते हैं PYQ लिख दे, कभी सोचते हैं कि PYQ सारे रिपीट नहीं होते. दिस इज ऑलवेज एम्बिग्विटी कि लिखना क्या है, इवेलुएट कौन करेगा, डिस्कशन कौन देगा. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम क्या करते हैं, 2-4 दिन रेगुलर रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, जो गैप्स आ जाते हैं प्रिपरेशन के अंदर. इन सब को हटाने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द डॉन प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द 15th. ओके, मंडे से स्टार्ट करेंगे. नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी कवर्ड, तो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे. मैं आपके साथ शेड्यूल भी शेयर करूंगा इसका कि हम शेड्यूल में क्या है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑन डेली बेसिस आप लगभग 2 क्वेश्चंस को लिखने वाले हो. ठीक है, एक का आप आंसर लिखोगे, एक पे आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन टेक्निक विच वॉज एबल टू हेल्प मी इन अचीविंग 324 मार्क्स. दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रमोट कि भाई इसको आप जरूर करिए ऑन अ डेली बेसिस ऑन फ्यू क्वेश्चंस, सो दैट कि हर बार लिखने का हो सकता है टाइम ना हो. सो आप आधे घंटे के अंदर आराम से एक क्वेश्चन लिख सकते हैं और एक को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट 4 मंथ्स, है ना, जो 4 महीने ये प्रोग्राम चलने वाला है, यू विल बी एबल टू कंप्लीटली चेंज योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग. व्हाट शुड बी दी अप्रोच, तो अप्रोच बहुत सिंपल है. अप्रोच जो होनी चाहिए इस तरीके की होनी चाहिए कि भाई आप अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे एज पर द शेड्यूल इटसेल्फ, एंड देन ऑन डेली बेसिस यू विल राइट फ्यू आंसर्स. हाउ टू एनालाइज द आंसर्स, तो वो हम कुछ तो आपको इवैल्यूएशन करके देंगे ही देंगे. एंड फिर आपको जो डिस्कशन मिलेगा वीडियो, उसके बेसिस पे भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, स्ट्रक्चरिंग और अच्छी कैसे हो सकती है. हाउ टू इनकलकेट द डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का बहुत ही एक ही तरीका है अच्छा, दैट यू कैन राइट द आंसर ओनली फॉर 1 डे. जो जिस दिन क्वेश्चन आएंगे उसी दिन आपको लिख के नेक्स्ट डे तक सबमिट करना पड़ेगा रफली, कि 1 बजे आपका आंसर हम अपलोड करेंगे, नेक्स्ट डे 1 PM तक आप वो ब्लॉक हो जाएगी विंडो. और डिसिप्लिन इसी तरीके से आ सकता है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ऑलवेज देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग वंस. ठीक है, तो आप पेंडिंग में हमें कभी नहीं जाना है.
फोकस रहना चाहिए देखो अपस्किल पे, कि हम अपने आप को अपस्किल करें, राइट। दिस इज़ नॉट अ प्रोग्राम फॉर दो स्टूडेंट उन्होंने कभी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा ही नहीं है, जो पढ़ चुके हैं, एक लेवल का नोट क्रिएशन कर चुके हैं, हो सकता है स्मॉल नोट्स ना हो, एटलीस्ट हैंड आउट्स हैं, तो उनको आप स्मॉल में नोट्स में कन्वर्ट करें एंड PYQs को सॉल्व करें। दिस इज़ अबाउट अपस्किलिंग, प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली बेसिस पे। देन मेंटरशिप मिलेगी आपको, है ना, यू गेट मेंटरशिप फ्रॉम मी ऑल्सो, फ्रॉम अदर फैकल्टीज ऑल्सो हु आर एसोसिएटेड विद अस फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल। देन ऑल्सो द कवरेज गोइंग टू बी मैसिव, पूरा सिलेबस को ही हम कवर करेंगे। दिस इज रफली द UPMC approach which is going to work with respect to this DAWN program. So if you are somebody who is preparing for 2025, तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। डेली आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, डेली आपको कुछ आंसर्स लिखने भी हैं, डिस्कशन वीडियो मिलेंगे, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज मेंटरशिप सेशन रहेंगे, 4 महीने तक प्रोग्राम चलेगा। 48 आवर्स के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको इवेलुएट होकर कॉपीज़ मिल जाए। सो दिस इज समथिंग विच इज़ फ्रॉम आवर साइड, ऑलराइट। एंड जैसे हम देखें, देखो कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपको आंसर फ्रेमवर्क मिलेगा, अच्छे से हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में क्या करना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, राइट। एंड पूरे तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा पूरा आंसर। एंड फाइनली जो कंक्लूजन भी होता है उसमें हमें कंटेंट एनरिचमेंट बॉक्स डालते हैं, जिसमें हम हिस्टोरियन, बहुत बच्चों को हिस्टोरियोग्राफी में दिक्कत है कि मैं इसमें क्या करूँ, तो हिस्टोरियोग्राफी भी यहाँ पे तरीके से दी होती है। सो इस तरीके से आपके पास बहुत अच्छे मॉडल आंसर्स निकल के आ जाते हैं एंड साइड बाय साइड यू आर एबल टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। अब देखो हमने क्या किया है कि रफली 20 दिन में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, 20 डेज ना, तो रफली 1 महीना आपको एक पार्ट में लगने वाला है। इफ़ यू सी लाइक स्टार्टिंग फॉर 22, 15 तारीख से आपको कुछ वीडियोस दिए जाएंगे, इनिशियली 7-8 वीडियोस विच आर रिलेटेड विद आंसर राइटिंग, बिकॉज आंसर राइटिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना भी तो पड़ेगा, थोड़ा समझना भी तो पड़ेगा आंसर लिखते कैसे हैं, तो वो फर्स्ट वीक आप उसमें स्पेंड करिए। वंस यू स्पेंड दिस फ्रॉम 22 स्टार्ट राइटिंग, पोर्टल एक्टिव हो जाएगा आपका, एक्सेस के थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे आर्कोलॉजिकल, फिर आपका लिटरेरी सोर्सेज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो, इंडस वैली, फिर सैटरडे संडे आप रिवाइज करिए, बाकी चीज़ें भी अगर आपकी प्रायोरिटीज़ हैं GS में उसको भी इनकॉर्पोरेट करिए। देन वीक 2 अगेन एंशिएंट इंडिया, वीक 3, वीक 4, तो लगभग आपका जो वीक 4 होगा वो लगभग फिनिश हो जाएगा बाय 16th ऑफ अगस्त आपका एंशिएंट फिनिश हो जाएगा। तो लगभग 4 महीने देखो ये प्रोग्राम चलने वाला है, और आपको डेली बेसिस पे ये ध्यान रखना है कि भाई जो पोर्टल का एक्सेस है वो 1 दिन के लिए मिलता है फॉर राइटिंग आंसर्स, ओके। सो दैट इज़ समथिंग विच वी सी हेयर। तो ओवरऑल जो आपके वर्किंग डे हो जाएंगे, मतलब जो आपको लिखना आंसर्स, वो 80 से 85 के बीच में रहेंगे, ठीक है। और जो प्रोग्राम है वो पूरा 4 महीने के आसपास ही निकल जाएगा, बिकॉज सैटरडे संडे आप इंक्लूड करोगे तो वो लगभग 4 महीने हो जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच विद विच यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। बट मेक श्योर दोज ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, एटलीस्ट एक लेवल का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तभी आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। इफ़ यू आर समबडी कंप्लीटली न्यू, आई वुड रेकमेंड आप फाउंडेशन कोर्स या AEP के साथ चलिए, ओके, उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु वांट टू बी डिसिप्लिन्ड, कि भाई आंसर राइटिंग सिर्फ नहीं हो पा रही, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ़ यू आर एट दैट लेवल, मेक योर लेवल बेस्ट, बिकम पार्ट ऑफ दिस, एंड 4 महीने में ना लगभग आपका by the end or by the beginning of November itself you will be able to finish off this batch. All right, so all the very best, thank you so much। इसका पार्ट बनिए और अच्छे से यूटिलाइज करके नेक्स्ट ईयर 300+ मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।